नाहो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जे हूँ जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। धन वाहिगुरु साहिब जियो, तिलंग महला नौवा। जाग लेहो रे मन जाग लेहो, कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजया संग ही, सो भी संग न होया। जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कह गाफल सोया। जो तन उपजया संग ही, सो भी संग न होया। रहाओ मात पिता सुत बंद जन, हित जास्यों कीना। जियो छूट्यो जब देह ते, डार अगन में दीना। जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए लै, सब सुफन समानो। जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए लै, सब सुफन समानो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक,
ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾਮ ਭਰਪੂਰ। ਰਾਜ਼ਾਨ ਰਾਜ਼ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਦੋ ਜਹਾਨ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਸਹਾਏ। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 727 ਅੰਕ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਓ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਲੇਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪੇਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਠ ਜਾਗ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ WhatsApp, ਕਦੇ Facebook, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਭਲਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉੱਠ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਜਾਗ, ਆਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਵਕਤ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪੇਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਗੇ
ਤੇ ਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਤਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਕੀ ਆਖੇਗੀ? ਇਹੋ ਆਖੇਗੀ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੋਦਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਾਤਾ ਉਂਝ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਬੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੇ, ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ। ਦਾਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 36-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਸੌਣਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ 5 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ? ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ, ਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਪਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ? ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਮਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੜਬੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਪਈ ਸੀ, ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੈਠ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਸ ਨਾਲੇ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਕੁੰਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਚਾਬੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਜਾਗेंगे? ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਖਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਲੇਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੇਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਾਗ ਜਾ, ਅੱਖ ਖੋਲ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੌ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਧਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਧਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀਰਾ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤ, ਮੋਲ ਕੀਏ ਦਾਮਨ ਕੇ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਵੀ ਹੀਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੇਚ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗਾ। ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੋਲਕ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੋਲਕ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਸੀ। ਪਰ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਗਾਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਅਚੇਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਵਾ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੋਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, 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 ਕੋਡੀ, ਕੋਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਕੋਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਕੋਡੀ। ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਇਹ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬਰਸਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਦੀ ਝੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ, ਕਈ ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਨਾ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰ ਜੀਵ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਜੀਵ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗਾਈਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨਿਰਧਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਇਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਇਲੇ ਵਿਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਜੋ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਵਿਕਣਾ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲ ਆਟਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, 5-10 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, 5-10 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹਟੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਿਨ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹੋ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਅੱਜ।
मैनू पता भी बच्चे भुखे ने। तुसी एक काम करो, तुसी ना कोयला ते बनना नहीं, लकड़ां सुक्कियां नहीं, मीह हट नहीं रहा, तुसी एवें करो, शहर वालियां नू ना कोई दातना नहीं दिंदा, तुसी जिन्हां दरख्तां तो टाणे वड्ड के ते कोयला बनांदे सी ना, उन्हां दियां छोटियां छोटियां सीटियां वड्ड के ना तुसी उन्हां दियां दातना बना के ते शहर वेच आओ, 1-2 रुपए दियां वेकणगियां ते आपां एक दिन ते प्रसादा बच्चियां नू छका सकीए ना। आखिर गरीब दी जिंदगी है। वो कहंदा चंगा भागवान ने वरदे मींह विच गया ते दातना लियाया उन्हां दरख्तां तो। दातना उन्हें तैयार कीतियां, एक थैले विच रखियां, साइकिल चुकी शहर नूं गया। हुण शहर वाले भी उड़ीक रहे सी भी कोयले वाला भाई नहीं आया, प्रसादा ते साडे घर भी पकना मुश्किल होया पिया। पर उन्होंने वेख्या भाई ते आया, अज कोयला नहीं लैके आया, अज होका दिंदा पिया कि भई मैं दातना लैके आया। एक बंदा कहंदा है जिहड़ा थोड़ा अमीर सी, वो कहंदा भी शुक्र है भी तू आ गया, सानू फिक्र लगा सी भी गरीब बंदा सी, चलो कोयला वेच दांदा सी, गुजारा होंदा चल जांदा सी। कहण लगे सानू डाढा फिक्र लगा सी ते तू आ गया, चंगा चल दातना लैके आया, कोई गल नहीं। कईयां नू तरस आ गया, जिन्हें एक खरीदनी सी उन्हें 2 खरीद लियां, जिन्हें 3 खरीदनियां सी उन्हें 4 दातना खरीद लियां। चलो 5-10 रुपए का इहदा इंतजाम होया ते वेच के आटा लैके ये तुर गया अपने घर नूं। बच्चियां ने अज प्रसादा छकिया, भल के फिर मीह ना हटिया, ये फिर गया दातना लैके। ते कमाल ये हो गई भी बंदे अगे उड़ीक रहे सन, कई उड़ीक रहे सन भी दातना वाला भाई अज लेट हो गया, की गल है? क्योंकि मीह बड़ा वर रहा सी। चलो ये भिजदे भिजदे भ्योंदे कपड़ियां नाल ये पुज्जिया, उन्हां दातना फिर खरीदियां। उन्हां चो एक बंदे ने कहा भी दातन बड़ी स्वाद सी, दातन बड़े कमाल दी सी, बड़ा आनंद आया दातन करके। ये फिर तीजे दिन गया, तीजे दिन एक बुजुर्ग हेठां उतरिया, इहदे कोल आया, वो कहंदा भलिया तू दातना बड़े कमाल दियां लैके आउना, तेनू पता है तेरी दातन इन्नी स्वाद है कि आनंद आ जांदा है, आनंद आ जांदा है। वेखो ना जी, मैं एक गल रोक के कह दिया, वेखो दरख्त तां साडी नज़रे बहुत ने, बड़ा कुछ हुंदा है, बड़ा कुछ कुदरत विच है। जेड़ा कुदरत विचों कुछ लभ लैंदा है, कुछ प्राप्त कर लैंदा है, जेड़ा कुछ नहीं लभदा उहनूं कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। हुण एक बाबा है ना, वो चीज़ां तो बड़ियां सीगियां, साडे गमले विच भी एलोवीरा सी ते बाबे ने भी एलोवीरा बना के कंपनी बना के बेच दिता। बाबे दा एलोवीरा ओहदे मोहर लग गई, वो महंगा ते साडे वाला सानू मेहनत करनी पैंदी, छिल के बनाना पैंदा। ख्याल करना, उन्हां बंदियां ने ना पुछ लिया, वो कहंदे भलिया आ जिहड़ी तू दातन लैके आना, इहदा स्वाद ही वखरा है, बड़े कमाल दा है, ये किहड़े दरख्त दी है? वो कहंदा जी मैनू नहीं पता ये किहड़े दरख्त दी है, मैं तां पहला मोटे मोटे टाणे वटदा सी, उन्हां नूं सुकाउंदा सी, कोला बनाउंदा सी, वेच दिंदा सी तुहाडे कोल आके। एक बजुर्ग बोलिया कोलों, जिहने उम्र हंडाई होई सी, जिवें गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सानू समझा रहे ने ना, मेरा गुरदेव बुजुर्ग है, मेरा सतगुरु तां बुजुर्गी दा तजर्बा साडे सामने रख रहे। वो बुजुर्ग बोलिया, वो कहंदा मेरे पुत्रा तेनू नहीं पता? कहने लगा ना जी मैनू बिल्कुल नहीं पता, सच कहना? कहने लगे हाँ। फिर एक गल होर दस कि तू सच्ची इसे दरख्त दे टाणे वड के कोयला बना के वेचदा रहा? कहंदे हाँ सच्ची बना के वेचदा रहा। कहंदे ओ भलिया ये दरख्त कोई आम नहीं, ये चंदन दा बूटा सी, ये चंदन दा बूटा सी। हुण ओ मत्थे नूं हत्थ मारदा है, ये की हो गया? ये काम तो मैं पता नहीं किन्ने सालों तो कर रहे हैं। एडा कीमती बूटा
ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। एडा कीमती बूटा ओनू मैं कोयले दे भाव बेच दिता। भलियो मेरा सतगुरु भी तां ही समझाउंदा है, हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए, कोडी बदले जाए, कोडी बदले जाए, कोडी बदले जाए, कोडी जद के मेरे सतगुरु जी ने समय समय ते इशारा दिता, समझाया। ये नहीं कि केवल गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 9वें जामे विच ये गल आखी होवे। नहीं नहीं प्यारिओ, समय समय ते हर सतगुरु महाराज ने सानू सुचेत किया, सानू जगाया। धन गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे ने, सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है, जे सुता ही रह गया तो कदों मिलेगा। आ वेला है ना मनुखा जीवन का। सतगुरु कहते ने मैं अपने मन नू बार बार समझाया, इस मन नू तुसी भी मित्र कह के संबोधन करिया करो, इस मन नू कहा करो वो ये वेला है मिलन का, ये समा है मिलन का। क्यों गाफलता दी नींद भी सुनना है, जब लग जोबन सांस है तब लग ए तन दे। जदों तक श्वास चलते ने ना, प्राण चल रहे ने, उदों तक ए तन है, ए देही है। गुरुदेव कहते ने बिन गुण काम ना आवई, ढह ढेरी तन खे स्वाह है। जे नाम जपण का गुण नहीं ना, जे बंदगी का गुण नहीं है तो सतगुरु महाराज कहते ने फिर की है, फिर स्वाह दी ढेरी है, कुछ नहीं, व्यर्थ है। इस करके मेरे मालक कहते ने जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। जेड़ा तन लैके तू जन्मिया ये भी तेरे नाल नहीं जाना, ये भी तेरे नाल नहीं जाना। ते इस तन विच रह के तू इहदा फायदा चक सकदा है, इस देही का फायदा चक सकता है। पर बंदा है, बंदा केवल तो केवल गाफलता दी नींद विच सो के अपने कर्म नूं पहचानदा ही नहीं। गुरुदेव पातशाह जी बार बार इनू चेते कराउंदे ने, बार बार इनू हलूना दिंदे ने। इनू कहंदे ने चेत अचेत मूड मन मेरे, चेत अचेत मूड मन मेरे। अचेत गाफलता दी नींद विच, सुचेत जेड़ा चेतन हो गया, जेड़ा जाग गया। सतगुरु कहंदे उन्हें चेते कर, ऐ अचेत मन तू उन्हें चेते कर। किस नूं चेते कर? सतगुरु कहंदे ने चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं कछ तेरा, अंत नहीं कछ तेरा, अंत नहीं कछ तेरा, अंत नहीं कछ तेरा। सतगुरु जी असी तो समझी बैठे से सब कुछ साडा है, ये माता पिता, ये भैन भरा संबंधी, ये सब कुछ नाल ही जान वाला है, साडे नाल रहणगे। सतगुरु कहंदे प्यारिया तेनू तीजे जामे विच भी समझाया सी, ए कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही ते सुनाल क्यों चित लाई है। तेनू पहले जामे च समझाया सी कि जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ना साणे, सुरत शब्द पौ सागर तरिए, नानक नाम बखाना। ते सतगुरु पातशाह अज दे शब्द विच गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने भरावा मात पिता सुत बंद जन हित जासों कीना, जिन्हां नाल तू हित ला के बैठे ना जियो छुटियो जब देह ते, जदों प्राण इस देही विचों निकल गए। सतगुरु कहंदे ने डारे अगन मैं दीना, डारे अगन में दीना, डारे अगन में
डार अगन में दीना, डार अगन में दीना, डार अंत नहीं कछ तेरा, अंत नहीं कछ तेरा, अंत संग सखा सब तज गए, संग सखा सब तज गए, कऊ न निभ्यो साथ, कऊ न निभ्यो साथ, कहो नानक ए विपत में, कहो नानक ए विपत में, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, जीवत लो व्यवहार है, जीवत लो व्यवहार है, सतगुरु पातशाह कहते भलिया ये सब जींदे जीव का तमाशा है, सब जींदे जीव दा। चेते रख जग को तुम जानो, सतगुरु कहते बस जग नूं इन्ना ही समझ लै, जिंदगी का वरतो विहार बस जीवन तक ही है। नहीं तो गुरुदेव कहते नानक हर गुण गाए लै, सब सुपन समानो। मेरे मालिक कहते ने धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज इस इंसान नूं समझाउंदे ने कि ये सारा कुछ इंज जान के सुपने वांग है, ते सुपने दे विच जे चित ला के बह गया ते तैनूं पता की समझिया जाना है, पता की समझ। जेड़ा बंदा सुपने दे नाल चित ला लवे ओनूं गुरबाणी की कहंदी है, गुरबाणी कहंदी है सुपने सेती चित मूर्ख लाया। हुण कोई डिग्री लेना चाहुंदा है मूर्ख दी? कोई नहीं लेना चाहुंदा ना जी, कोई नहीं डिग्री लेना चाहुंदा ना। इस करके कहंदे भलिया सुपने नाल चित ना लाया करो। पर मैं वेखदा बंदा सुपने नाल ही जुड़िया होया। एक बंदा ना बाबा जी कोल आ गया डेरे विच, बाबा जी कोल आया, कहन लगा बाबा जी सुपना आउंदा है। बाबा जी कहन लगे चल पई अरदास करदे हैं तेरी, तैनूं सुपना ना आवे। पर ये दस तेन सुपना कादा हुंदा है? कहन लगा जी सुपना तुसी ये अरदास करो भी सुपना आवे। कहन लगे फिर समस्या ही साडे कोल काहनूं रखदा? कहन लगा बाबा जी समस्या कुछ होर है। बाबा जी कहन लगे दस फिर क्या समस्या तेन? कहन लगा जी सुपना आउंदा है ते सुपना भी नोटां दा आउंदा है। गज के आखो सतनाम। ते नोट भी वड्डे वड्डे 2-2 हज़ार वाले गुलाबी वाले। कहंदा जी सुपना आउंदा है ते सुपना वड्डे नोटां दा आउंदा है। बाबा जी कहन लगे चल तेरी अरदास करदे हां भी सुपना ना आवे तैनूं नोटां दा, आपां होर क्या कर सकदे हां? वो कहंदा ना 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 बाबा जी अरदास ना करियो भी सुपना ना आवे नोटां दा, समस्या कुछ होर है। बाबा जी कहन लगे फिर 10 समस्या क्या है? कहंदा जी समस्या ये है भी सुपने विच बहुत सारे नोट आउंदे ने पर हवा दा वारोला आउंदा है उन्हां नूं उड़ा के लै जांदा है। ये अरदास करो भी हवा दा वारोला ना आवे ते उन्हां नोटां नूं मैं साम के रखां। हुण इहनूं की आखोगे? सुपने सेती चित मूर्ख लाया। बंदा सुपने नाल जुड़िया पिया, बंदा उस नासवंतां दे नाल ही जुड़िया होया। सतगुरु पातशाह कहंदे ने ए भाई ये सुपन समानो है, ये संसार सुपने दी न्याई है। इत्थे ए समझ लै ए दुनिया मुसाफिर खाना है।
ये दुनिया मुसाफिर खाना है, इथों अपनी वाट मुका ते अगे तुरदा बन। बुल्ले शाह ने बड़ा प्यारा लिखिया है, वो कहंदे बुल्ले शाह इत्थे सब मुसाफिर किसे ना इत्थे रहना। बुल्ले शाह इत्थे सब मुसाफिर किसे ना इत्थे रहना, आपो अपनी वाट मुका के सब नूं मुड़ना पैना। इत्थे अपनी मंजिल मुका के ना सब नूं मुड़ना पैना अपने वतनां नूं, जिन्हों कहंदे ने सब नी सोरे वंजणा सब मुकलावण हार। बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए तेरे वाजों सारे, तू करते जित गए सी मैं करदे हारे। जे तू कीती हुंदी ना फिर जित गए सी बाजी, पर मेरी माया मेरे नोट मेरी धन दौलत इस गाफलता विच ही हार गए हैं। जद के गुरु तेग बहादुर साहब ने समझा दिता सी, धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इनमें कछ संगी नहीं नानक साची मान। सो गुरु सवारियो सतगुरु गाफलता दी नींद विचों जगा रहे ने ते अगले शब्द विच फेर कहंदे ने, जे तू जाग गया ना ते फिर की कर। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने अगलेरे शब्द विच, तिलंग महला नौवां हर जस रे मन गाए लै, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो रहाओ। संपत रथ धन राज स्यों अत नेहु लगायो, काल फांस जब गल परी सब भयो परायो। जान बूझ के बाबरे तैं काज बिगाड़ियो, पाप करत सुकोच्यो नहीं न गर्भ निवार्यो। जे बिद गुर उपदेसिया सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार के गाहो प्रभ शरणाई। जे बिद गुर उपदेसिया सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार के गाहो प्रभ शरणाई। धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज इस शब्द के राही प्रेरणा दे रहे ने। कहते तू गाफलता दी नींद विचों जे बाहर आ गया होवे ना तां काम कर लै कि हर जस रे मन गाए लै। तेनू एहसास हो गया है कि तेरे नाल कुछ भी नहीं जाना, जिन्हां नाल तू चित जोड़ के बैठा ना वो कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता बिनोद सुतै ने। जे तेनू एहसास हो गया तो छाड़े खेड़ा उबर इस मोह दे तंदां विचों बाहर आ जा। हरि दा जस तू गायन कर, परमेश्वर दा नाम जप। जो संगी है तेरो, तेरा असल संगी साथी ओही है। बंदे नूं किवें पता लगे, किवें एहसास होवे। बंदा ते रात दिन बड़े बड़े प्रपंच करके ढंग करके माया कमाई जा रहे हैं, दौलत इकट्ठी करी जा रहे हैं, सोचता मेरा संगी साथी यही है। जन्म साखियां दे विच जिक्र आउंदा है, गुरु नानक साहिब महाराज तुलंबे दी धरती ते गए। तुलंबे दी धरती ते सज्जन मिलिया जिस नूं शेख सज्जन लोग कहंदे ने। हुण सज्जन जिहड़ा है उन्होंने यही भुलेखा सी भई मैं भावें जिहड़ा भी ढंग अपना के ये दौलत इकट्ठी कर ला शायद मेरे नाल जाएगी, यही मेरा साथी है। यही भुलेखा सी ना उसनूं, इस करके वो वधीकियां करदा सी, इस करके उन्हें बाणा भी ठग्गां वाला पा लिया। याद रखना चोर नूं पकड़ना सौखा है,
ठग नूं पकड़ना बहुत औखा है। ठग नूं तां मेरा बाबा ही फड़ सकदा है, चोर नूं तां कोई भी फड़ लेगा, क्योंकि ठग दा बाहरली पहरावा जिहड़ा है ना वो कुछ होर हुंदा है। वो सज्जन कर रहा सी, पर मेरे बाबे ने कमाल कीता। उस गुरदेव गुरु नानक साहब जी ने उस नूं जेड़ा सूही राग विच उपदेश दिता ना, वो बड़े कमाल दा। जेड़ा असीं शब्द पढ़दे ना, उज्जन केहा चिलकना घोटम कालड़ी मस, सतगुरु उहदे एक बंद विच ओनू एहसास कराउंदे ने। जिवें इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने कि जो संगी है तेरो, जेड़ा तेरा संगी साथी है ना असल, ओनू गायन कर, ओदे नाल जुड़ जा, ओदे नाल सांझ बना, रब्बी गुणां नाल सांझ बना, वो तेरे नाल निभणे ने। आ जेड़े पदार्थां नाल तू सांझ बना के रखी, तेरे नाल नहीं निभणे। गुरु नानक साहब जी ने एहसास उन्हों कराया, सज्जन सेई नाल मैं। अज सज्जन नहीं सुन रहे हैं, अज मैं सुनदा पिया। अज ये हालत मेरी हो सकती है कि मैं किसी होर पासे चित्ता नहीं लाया होया, इस करके अज ये गल मेरे उत्ते टुकदी है। अज बाबा जी मैनू समझा रहे ने कि सज्जन सही नाल मैं, चलदियां नाल चलन। ओ प्यारिया, जिन्हां नू तू सज्जन समझी बैठा ना अपने, वो सज्जन कोई नहीं, वो नहीं साथ देणगे, वो छड़ जाणगे तेरा साथ। असल सज्जन वो है जो नाल चलन तेरे। हुण ये गल तां दुनी चंद नूं केवल सूई दे के ही समझ आ गई सी ना, ओनू सूई दे नाल ही समझ आ गई। असी सूई वाली साखी पता नहीं कितनी बार समझिए, सानू समझ हुण तक नहीं आई। अज सज्जन वाली साखी पता नहीं कितनी बार समझिए, सानू हजे तक समझ नहीं आई। गुरदेव कहंदे ने भलिया मित्र ओही है, सज्जन ओही है जेड़ा चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। जिथे लेखा मंगया जाए उत्थे नाल निभणगे। वाल्मीकि दी साखी तुहाडे सामने है। ओनू पुछया सी साधुआं ने, आज जिन्हां वास्ते तू बहु प्रपंच कर परतन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नवेरा तेरे जी पै लीजै, ये नाल निभणगे। सारियां ने कहता सानू नहीं पता, ये तेनू आप ही भुगतना पैना। गल समझ आ गई सी प्यारिओ। असल सज्जन ओही है जेड़ा नाल निभे। असल सज्जन वो है जेड़ा कि विपता वेले साडे हाथ दा दस्ता फड़ लवे। ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने, इत्थे जन पिसर पदर बिरादरां कसनेस दस्तंगीर। कोई हाथ दा दस्ता फड़न वाला नहीं है, कोई इत्थे मददगार नहीं। केवल तो केवल ओही सज्जन है जेड़ा मददगार होएगा। हुणे तुसी पढ़िया, कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। विपता दे विच या तां वाहिगुरु परमेश्वर साथ दिंदा है, या मेरा गुरु साथ दिंदा है। परमेश्वर भी जाको मुश्किल हथ बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज, खलोए सबो भजै, चुकै सब चित आवे उस पार ब्रह्मता लगे ना तत्ती। जदों विपता पवे ना, या तो रब साथ दिंदा या मेरा गुरु दिंदा है। विपता बन गई, विपता बन गई। विपता एहो जी बनी कि औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिता, शेर अफगान के जिन्ने भी सनातन धर्म ने मंदिर ने सनातनियां दे, उन्हां नूं वो सारी उन्हां दी बंद कर दित्ती जाए। पुराने मंदिरां दी मरम्मत ना कीती जाए। सारे हिंदुआं दे जनेऊ उतार दिते जान, चोटी कट दित्ती जाए, तिलक इन्हां दा बंद कर दिता जाए। बड़े बड़े हुक्म जारी हो गए, आप सारे जानते हो ना। विपता ने घेर लिया। इस विपता दे मारे हुए ब्राह्मण उन्होंने कहा मीटिंग करते हैं। अमरनाथ दे मंदिर विच मीटिंग हुई, पर दूर दूर तक समस्या दा हल नजर नहीं सी आउंदा। वैष्णो देवी दे मंदिर विच भी मीटिंग हुई, भई ये हुण साडा स्वतंत्र धर्म जिहड़ा है वो गुलामी दीयां जंजीरां विच जकड़ा जा रहा है। कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। आखिर किसी ने कहा कि याद रखो, कदे बापू नानक तुहानू जगा के गया सी,
गुरु नानक ने उदों ही कहा सी कि जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता खिच खाए। इहो जिहा जीना बेकार दा जीना है जे तुहाडी पाती ना रही ते जिहदी चोटी कट्टी जाए। जेड़े धार्मिक चिन्ह उतार दिते जाण उहदी कादी पत है, उहदी कादी इज्जत है। प्यारेओ दूर दूर तक कोई नजर ना आया। एक ने कहा एक दर है गुरु नानक दा दर है, एक दर है गुरु बाबे दा जेड़ा जेदी बाह फड़ लवे जो शरण आवे तिस कंठ लावे। ए बिरध स्वामी संदा उस दर ते चले जाओ। कृपाल चंद की अगवाई दे विच 16 ब्राह्मणों का वफद गल विच पल्ला पा के दुखी विप्र चल आए पुरी आनंद। बांह साडी पकड़ी है श्री हरगोबिंद के नंद। उन्हें कहा पातशाह असी दुखियारे हाँ, सन दूर दूर तक कोई मददगार नजर नहीं आता। उस दिन मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी प्यारिओ ये गुरु नानक दा दर है। ठीक है असी जबरन ए जनेऊ पाना प्रवान नहीं किया, पर जबरन एनू उतरना प्रवान भी नहीं करांगे, एनू जबरन उतरन भी नहीं देंगे। ओ रोंदे हुए ब्राह्मणा नू मेरे मालिक ने ये एहसास करा दिता सी कि सज्जन सही नाल में चलदियां नाल चलन। सज्जन वो है जेड़े विपता समय नाल खलो जान। भट चांद कहंदा चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए। मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी ए मन होड़िए। बाहां जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बाहां ना छोड़िए। उदन मेरे गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी रोवो ना बेटा हंसो देख मुझको मैं धर्म का झंडा झुलाने चला हूँ। लगी आग पापों की दुनिया में मैं अपना खून पाके बुझाने चला हूँ। हिंदुओं के मंदिर और गोराहे औरंगे उनको मैं फिर से बनाने चला हूँ। जो चोटी को काटे जो जनेऊ को काटे ऐसा तेज खंजर मैं अपने सीने पे खाने चला हूँ। रोवो ना बेटा हंसो देख मुझको मैं धर्म का झंडा झुलाने चला हूं। उदन ही गुरु तेग बहादुर साहब ने ऐलान कर दिता सी जाओ जाके उस औरंगजेब नू कह देना मैनू पता है कि खून दा प्यासा है, मैनू पता है वो लहू दा प्यासा है। उन्हें सरमद वर्गियां दा कतल किया, अपनी भैन दा कातल है, अपने प्यो दा कातल है, अपने भरावां दा कातल है। इन्ना खून पी के भी हजे भी वो प्यासा है। गुरु तेग बहादुर साहब इन्ना खून बहाणगे कि वो तुम पीता नहीं जाना। उस दिन गुरु तेग बहादुर साहब ने कह दिता सी एक अदीब कहंदा मेरी सरफरोस्ती दा हसर की नहीं होना, मौत दा फरिश्ता बन के ते तो जी नहीं होना। मैं इन्ना खून बहावांगा कि ते तुम पी नहीं होना, ते तुम पी नहीं होना। गुरु तेग बहादुर साहब ने बांह फड़ी और कमाल कर दिता। मेरे उस्ताद प्रोफैसर मनिंदरपाल सिंह दे पिता जी बड़े महान कवि सन, सरदार त्रिलोचन सिंह जी गुंचा। उन्होंने जदों सानू पढ़ाउंदे सी कदे क्लास लाउंदे सी गुरमत दियां ते उन्होंने बड़े कमाल दा मूल्यांकन कीता इस सारी गाथा दा। वो कहंदे ने बुल्ले शाह दी कलम विचों, बुल्ले शाह दी कलम विचों होया इंज इजहार ना हुंदा। जो कुछ अखां वेख रहीआं ने ऐसा कोई पासार ना हुंदा। मंदिरां विच ना टल खड़कदे, पूजा लई कोई तैयार ना हुंदा। ना हुंदे इत्थे जगराते, ना हुंदे इत्थे जगराते। ना कोई राम उपासक हुंदा, जपदा कोई मुरार ना हुंदा। चेते रखना सतगुर ने कहा अज इस गुलदस्ते विच, हिंदुस्तान दे गुलदस्ते विच असी सारे रहने, हिंदू भी, ब्राह्मण भी, मुसलमान भी, सिख भी, बोधी भी। एक किहदी कृपा है? गुरु तेग बहादुर साहब। बुल्ले शाह दी कलम विचों होया इंज इजहार ना हुंदा। जो कुछ अखां वेख रहीआं ने ऐसा कोई पासार ना हुंदा। मंदिरां विच ना टल खड़कदे, पूजा लई कोई तैयार ना हुंदा। ना हुंदे इत्थे जगराते, माता दा दरबार ना हुंदा। सुन्नत सबदी कीती
ਹੋਣੀ, ਜੰਜੂਆਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ਇਹ ਅਵਸਰ ਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕਾ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਉ ਅਤ ਨੇਹ ਲਗਾਇਓ। ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨੇਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਮੌਤ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਵਰੇ ਤੈਂ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜਿਓ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗਾੜਨਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਫਰੀਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਵਰੇ ਤੈਂ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜਿਓ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਕੋਚਿਓ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਾਪ ਬੁਰਾ पापी को प्यारा, माखी चंदन पर हरे, जहां बेगंद तहां जाए। सारे मात्र समझो क्योंकि समा हो गया। बार बार बेगंद उत्ते जानता है गंदगी है, फिर उससे उत्ते फिर पाप उत्ते। जानता मनुख सब कुछ है। जेड़ा अचेत मन है उहदे नाल पाप कर रहा, सुचेत मन कहंदा मना ये पाप है, फिर बंदा करी जांदा है। मना ये पाप है, फिर करी जांदा है। गुरदेव पातशाह कहंदे ने, जे बिद गुर उपदेसिया सो सुन रे भाई। गुरदेव कहंदे ने, हे भाई गुरु ने प्रभु ने गुरु ने मैनू जिस तरह उपदेश किया, गुर दे रारे नू सिहारी है। करता ने गुरु ने जिस तरह मैनू उपदेश दिता है, प्रेरणा दी है, वो मैं तेनू कह दिता है, वो मैं तेनू सुना दिता है कि हर जस रे मना गाय लै जो संगी है तेरो। मैं अपनी ड्यूटी निभा दी, हुण तेनू अपना फर्ज निभाना है। गुरु तेग बहादुर साहब ने तो अपनी जिम्मेवारी निभा दी है। गुरदेव कहते ने, नानक कहत पुकार कै गहो प्रभ शरणाई। फिर भी मैं तेनू पुकार करदा, फिर भी मैं तेनू बेनती करदा। ओ भलिया हजे भी डुल्ले वेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, तू प्रभु दी शरण फड़ लै। जे किते खुंज गया, जे किते इस मनुखा जीवन विचों खुंज गया, ते फिर चेते रख ये दोबारा नहीं मिलना, ये मुड़ के नहीं मिलना है। जे समा एक बार गुजर जाए तो फिर पछतावा ही पछतावा हुंदा है, उस तो इलावा कुछ नहीं हुंदा। ते एक बार गुजरिया होया समा वो वापस नहीं आउंदा। ये मनुखा जीवन है, जे इनू एवें ही गुजार दिता ना गाफलता दी नींद विच, फिर ये वापस नहीं आएगा। एक अदीब बड़ा सोहना लिखदा है, वो कहंदा है, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। ये साढ़े बहुतियां दी हालत है। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, महफिल में समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, महफिल में समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बापू उदों कहंदा, पुत वे मैनू गुरुद्वारे लै चलो, ते अगों कोई कहण, बापू जवानी कित्थे गुजारी? क्लबां विच। बापू असी कहंदे सी बापू शाम नूं आएगा, प्रसादा इकट्ठा छकांगे,
ਤੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। हुण फेफड़े भी जवाब दे गए, हुण आंदरां जवाब दे गईयां, हुण बैठिया नहीं जाता, गोडे जवाब दे गए। फिर कहंदा हो मैं कित्थे जीवन गुजार लिया, भलिया जप जी कीता हुंदा, रहरास कीता हुंदा। खैर जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, महफिल में समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जिंदगी ने जब हथियार फेंक डाले, जिंदगी ने जब हथियार फेंक डाले, तब धर्मराज करने को जंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जिंदगी हथियार सुट देंदी है, नैनो नीर बहतन कीना भय केस दुधवानी रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राण। जिंदगी हथियार सुट देंदी। जिंदगी ने जब हथियार फेंक डाले, तब धर्मराज करने को जंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। गाड़ी गुजर गई, गाड़ी गुजर गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी गुजर गई तो घर से चला मुसाफिर। अफसोस लौट के घर को बेरंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त क्यों ना सिमरन किया तूने, फुर्सत के वक्त क्यों ना सिमरन किया तूने। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। एक अदीब इनू कहंदा है, जब किश्ती साबतो साबत थी मंजिल की तमन्ना किसको थी। जब किश्ती साबतो साबत थी मंजिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी सकिस्ता किश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। अब ऐसी सकिस्ता किश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान कर लेनियां। 2 दिन सेवा करदिया होया मैं जानदा हाँ उम्र भी छोटी है, आप बुजुर्ग बैठे हो, संगत विच सियाणे हो, रोजाना विद्वानां नूं सुणदे हो, बेअंत बेअंत भुल्लां हो जाणियां, उस सुभावक जी गल है। पर मैं ये भी जानदा हाँ सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस केते। भुल्लां मेरियां जान के खिमा करना, विचार सतगुरु दी जान के अपने हिरदे विच वसाना। सत्कारयोग बाबा जी दा तहे दिलों धन्नवाद है जिन्हां ने आप संगतां दे दर्शन कराए। वीर हरपाल सिंह जी दा जिहड़े बहुत वधिया प्रोग्राम बनाते हैं, गुरबाणी विचार का जिहड़े प्रोग्राम बनाया है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब की समूची बाणी के दर्शन आप जी नूं करा रहे हैं विचार राही। वीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बड़े उस सियाणे विद्वान ने ते सत्कारयोग ज्ञानी अमरजीत सिंह जी जिहड़े मेरे नाल ही पढ़े, इकट्ठे ही पढ़े ते अज सुभाव बनिया सुभावक ही कि वीर जी के भी दर्शन हो गए। सो दोवें ही ग्रंथी साहिबान का तहे दिलों धन्यवाद है। दूरों नेड़ों चल के आई सारी संगत का धन्यवाद। कोटान कोट शुकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। सतगुरु कृपा करे, होइयां बेअंत भुल्लां नूं ना चितारदे होए फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।